हेलो एवरीवन, दिस इज डॉक्टर अंजना फ्रॉम ग्लोबल इंस्टीट्यूट फॉर आईएएस। तो आज कवर करते हैं बेटा इंडियन एक्सप्रेस न्यूज़पेपर दैट इज ऑफ 2nd and 3rd ऑफ सितंबर, राइट। तो सबसे पहले हमारी जो न्यूज है दिस इज रिगार्डिंग कच्छ एरिया और इसके बारे में बताया जा रहा है कि यहाँ पे किस तरह के आपके जो है एक्सपेरिमेंट्स की बात है रिगार्डिंग योर स्पेस रिसर्च। ठीक है, तो देखते हैं क्या लिखा है। लाइफ इन दैट इज मतनोमध, a thinly populated village near 100 km west of Bhuj town in Gujarat. Matanomad, Bhuj region, Gujarat, Kutch district has never been easy. ऐसा एरिया यहाँ पे लाइफ हमेशा से टफ रही। क्यों? Surrounded by thorny shrubs, terrain is harsh, unforgiving, unfit for cultivation or large human settlements. Yet this village might end up as a potential test bed है ये हमारा। किसके लिए? इसरो के लिए, ahead of its खास करके मंगलयान 2 mission to Mars. Now a team of researchers from the Space Application Center in कहाँ पे है इसका headquarter? That is in Ahmedabad. Then the Savitribai Phule Pune University and the Birbal Sahni Institute of Paleosciences कहाँ पे है? लखनऊ में recently confirmed the age of jarosite, that is a mineral discovered in Mantunamad in 2016. यहाँ पे एक खास किस्म का मिनरल मिला था 2016 के अंदर to be around 55 million years old, corresponding with the Paleocene period in the geological timeline. Paleocene time period से जो है ये belong करता है mineral। तो बहुत important features हैं इसके, बहुत important news है। The dating of this mineral found in a few rock structures in Matanomad suggests that there was a similar geological occurrence on both the planets millions of years ago. तो इसकी 55 मिलियन इयर्स एगो प्रेजेंस है, दैट मींस इसको हम कहीं ना कहीं रिलेट कर सकते हैं विद अदर प्लैनेट्स। नाउ दिस इज द रिसर्चर said suggests that the conditions in the Kutch village resembles the environmental and chemical conditions thought to exist on Mars। जो हमें लग रहा है कि मार्स में जो है वो इस तरह की कंडीशंस एग्जिस्ट करती होंगी, वैसी ही सिमिलर कंडीशंस हमें एक्चुअली कच्छ रीजन में मिल रही हैं एंड कुड ऑफर एन एक्सीलेंट टेस्ट बेड फॉर द स्टडी ऑफ रेड प्लैनेट सरफेस। इस वजह से अगर हम इस एरिया में स्टडी करेंगे तो कहीं ना कहीं हम रेड प्लैनेट को स्टडी कर रहे हैं बिकॉज दोनों में सिमिलरिटीज हैं, बिकॉज ये भी बहुत साल पहले 55 मिलियन ईयर्स पहले ये एरिया डेवलप हुआ था। तो दिस साइट कुड thus offer field analogy mission for Mars where the rover motion, instrument testing, drilling, geochemistry experiments could be performed. So the findings were published in the Journal of Geological Society of India last month. Our findings not only connect Earth's geological past with Mars, तो कहीं ना कहीं हम सिर्फ लिंक ही नहीं कर रहे मार्स के साथ, but also provides a terrestrial blueprint for astrobiology। तो हम लाइफ को भी स्टडी कर सकते हैं कि इस तरह की जो है एनवायरनमेंट में कैसे लाइफ जो है वो रहती है, राइट। तो ये मिनरल जो है मे होल्ड क्लू। सो ये आपका जो है एग्जैक्ट अगर हम मैप में देखें तो now this is जामनगर, द्वारका, now this is गुजरात, this is भुज और उसके पास आपका ये है that is मतनोमद एरिया। इसको जरूर अच्छे से याद करो। Now, according to researchers, now your jarosite discovered in the village in 2016 around 55 million years old है। This suggests similar geological occurrences on both Earth and Mars millions of years ago। तो ये रीजन है कि यहाँ पे स्टडी जो है वो की जा रही है। अभी अगर हम बायोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू को देखें तो यहाँ पे आपके नाउ मिनरल एक्सप्लोरेशन, इसके अलावा फ्यूचर स्पेस मिशन, ये सारी चीजें जो हैं हम यहाँ पे अच्छे से स्टडी कर सकते हैं। Now, incidentally, this is not the only site in India where researchers are trying to experience Mars-like condition. ISRO has been trying to simulate the living conditions and the environment of Mars and Moon in the desolate high-altitude village in Ladakh. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो लद्दाख में भी ऐसी जो है वो आपको कंडीशंस मिलती हैं थ्रू इट्स होप क्या है? हिमालयन आउटपोस्ट फॉर प्लेनेटरी एक्सप्लोरेशन। जरूर याद करो, चांसेस आर वेरी हाई पीसीएस में क्वेश्चन आए। व्हाट इज होप? हिमालयन आउटपोस्ट फॉर प्लेनेटरी एक्सप्लोरेशन।
ये मिशन है आपका। इन अगस्त 2 crew members spent 10 days in a compact replica of a Mars habitat at Sokar Valley in Ladakh, about 4500 meter above sea level है ये, where the oxygen and air pressure are thin and temperature are sub-zero। तो वैसी ही conditions काफी हद तक मिलती जुलती हैं जितने की मार्स में है। And while the Ladakh site could offer a test bed for experiments on the environmental conditions of Mars, Kutch village is expected to offer insight into the geological and mineral compositions of Mars. So it was in 2016 that a team led by Space Application Center first reported the presence of jarosite in Kutch. बार-बार ये टर्म आ रही है, jarosite, jarosite, jarosite. इसमें ध्यान दो इस टर्म को। Around the same time, its presence was confirmed along Kerala's Varkala cliff. But what makes that is Matanamad better suited for Martian studies is its relative remoteness. ये बहुत ही रिमोट रीजन है, इस वजह से यहाँ पे अच्छे से स्टडी हम कर सकते हैं। इन कंट्रास्ट द साइट इन केरला नियर वर्कला बीच इज अमंग द स्टेट्स मोस्ट विजिटेड टूरिस्ट लोकेशन। लेकिन वर्कला साइट में एक्चुअली हमें मुश्किल एक्सपेरिमेंट करने बिकॉज वो टूरिस्ट लोकेशन है। एंड देन सिमिलर जेरोसाइट डिपॉजिट्स हैव बीन फाउंड इन मैक्सिको, कनाडा, जापान, स्पेन एंड इन उताह एंड कैलिफोर्निया इन यूएस। तो बाकी की कंट्रीज में भी इस तरह की कंडीशंस जो है वो मिलती हैं। और अर्थ जेरोसाइट क्या है, इज फॉर्म्ड व्हेन सम मिनरल्स रिच इन ऑक्सीजन, आयरन, सल्फर एंड पोटेशियम रिएक्ट इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर। तो वो बनता है आपका जेरोसाइट। डेफिनेशन भी मिल रही है। एंड द डिस्कवरी ऑफ जेरोसाइट ऑन मार्स वाज वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट पीस ऑफ एविडेंस ऑफ द प्रेजेंस ऑफ वाटर ऑन द प्लैनेट। और इसी वजह से ही हमें बहुत हद तक ये बात क्लियर है कि वहां पे प्रेजेंस ऑफ वाटर जो है वो डेफिनेटली है। और देन in 2004, NASA's Opportunity mission to Mars was first to detect the traces of jarosite at the Biridani Planum landing site, and subsequently this mineral was detected at several other places on Mars. तो इस तरह की ही सेम मिनरल्स आपको ऑलरेडी मार्स पे जो है वो मिल चुके हैं, indicating its common occurrence on the red planet. And on Earth, it is rare to find jarosite traces within sedimentary rock. Now, jarosite formation is typically associated with volcanic activity. बहुत डिटेल में आपको इंफॉर्मेशन मिल रही है jarosite की। So when volcanic activity dominated in Kutch millions of years ago, the volcanic ash containing sulfur may have mixed with marine water, adding the formation of your jarosite. Now, jarosite found in Matanamad occur as a fine deposit mixed in clay. When mixed with water, this clay expand, and laboratory tests were later performed to see if jarosite remain from this clay. तो हम इस क्ले से फिर फर्दर जेरोसाइट के रिमेन्स ले सकते हैं। एंड द रिसर्चर्स फाउंड दैट दिस मिक्स ऑफ सल्फेट एंड क्लेस क्लोजली रिजेंबल दोज फाउंड ऑन मार्स। नाउ एज सच साइंटिस्ट्स बिलीव further studies on the jarosite sample of Matanamad could help decode the paleoevolution of marine geology and the past chemical interactions on the planet. Moreover, as sulfate such as jarosite could trap organic molecules and elements that support life within them. इसी वजह से हम कह सकते हैं कि मार्स में भी कहीं ना कहीं लाइफ हो सकती है, बिकॉज ये जेरोसाइट की वजह से ही ये ट्रैप होते हैं ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स और सपोर्ट कर सकते हैं लाइफ को आगे चल के। एंड एग्जामिनिंग दीज सैंपल्स इन कच्छ कुड ओपन विंडो ऑफ द अपॉर्चुनिटी फॉर डिजाइनिंग स्ट्रेटजीज फॉर फ्यूचर मार्स मिशन दैट विल एक्सप्लोर लाइफ ऑन द रेड प्लैनेट। तो इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट न्यूज फॉर अस, इसको बहुत अच्छे से आप डेफिनेटली कवर करके जाओ। नेक्स्ट हमारी जो न्यूज है हेल्थ के साथ रिलेटेड है। कोई भी नया डाटा अगर आए डेफिनेटली आपको लर्न करना है। दिस इज रिगार्डिंग केसेस ऑफ कैंसर। फर्स्ट डेटा आउट 2015-19 कैंसर रजिस्ट्री डाटा स्टडी, मोर वीमेन गेट कैंसर देन मेन बट लोअर शेयर इन डेथ्स। तो ये आपका डाटा है। अब इसके अंदर विमेन अकाउंटेड फॉर हायर प्रोपोर्शन ऑफ कैंसर केसेस इन द कंट्री कितना है 51% अराउंड, बट द लोअर प्रोपोर्शन ऑफ कैंसर डेथ 45%। डाटा इजी है याद करना। इसके अंदर ओरल कैंसर हैज ओवरटेकन लंग कैंसर एज द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ डिजीज अमंग मेन, एंड कैंसर अकरेंसेस वाज अमंग द हाईएस्ट इन द नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स। बहुत ही अजीब है ना ये डाटा। Now these are some of the key findings of an analysis by researchers from your premier institutions of data collected from 43 cancer registries across the country between 15 to 19, a period between like when 7.08 lakh cancer cases and 2.06 lakh deaths were recorded. तो इसके अंदर आपको हाईएस्ट एवरेज एनुअल इंसिडेंस भी दिख रहे हैं। तो रजिस्ट्री एंड इंसिडेंस रेट सबसे ज्यादा आपको यहाँ पे दिख रहा है
एजेवाल, खासी, पोपुमपेर, कामरूप अर्बन, मिजोरम। सो ये सारा डेफिनेटली आपको नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट ही नजर आ रहा है और विमेन में भी आपको यही रीजन नजर आ रहे हैं, यही रीजन के बारे में हमें इन्होंने ज्यादा रिपोर्ट करा है। राइट, आगे चल के देखते हैं इसमें। Now the analysis was conducted by a group of national investigators from data collected by various hospitals। कहां से इन्होंने डाटा लिया ये हमेशा याद करना है, एम्स दिल्ली, अदयार कैंसर इंस्टीट्यूट चेन्नई, देन पीटी हिंदुजा जो है मुंबई, टाटा मेमोरियल कैंसर सेंटर जो है वहां पे नवी मुंबई, असम मेडिकल कॉलेज से। एंड डाटा फॉर 2020 was not included in the analysis due to the impact of COVID। Now government has several cancer care programs in place of and on the annual including screening at the lowest level through health and wellness center होता है, day care center to be rolled out across all districts and treatment in the tertiary center under आयुष्मान भारत ये चल रहा है। The women see higher cases। इसमें डॉक्टर प्रशांत माथुर जो है he said who coordinated the country's cancer registry said gender disparity is linked to the time taken for diagnosis because maybe diagnose में जो है आपका फीमेल में ज्यादा टाइम लगता है। The apparent disparity of more cases but fewer death can largely be explained by types of cancer most common in women। Women में लेकिन डेथ रेट कम है और मे बी शायद ये टाइप ऑफ कैंसर के साथ कहीं ना कहीं रिलेटेड होगा। ब्रेस्ट एंड आपके जो सर्वाइकल कैंसर है ऑब्वियसली जो फीमेल्स में होते हैं ज्यादा, कैंसर टुगेदर अकाउंट्स फॉर 40% ऑफ फीमेल कैंसर एंड जनरली हैव बेटर प्रोग्नोसिस। लेकिन फीमेल्स के लिए ये जल्दी डिटेक्ट कर पाते हैं, ऑब्वियसली गायनेकोलॉजिस्ट के पास वो विजिट करती रहती हैं तो इस वजह से होता है। एंड higher survival and established screening program that support early detection। In contrast men experience higher mortality because of their leading cancer जो है oral, lung, liver, stomach, esophagus ये इन एरियाज में इन आपके जो है ऑर्गन्स में होता है are often diagnosed late। लेकिन मेल्स में जो है इसकी डायग्नोसिस थोड़ी लेट होती है, have poor outcome, इसी वजह से डेथ रेट ज्यादा है। And our recent survival जो है analysis also indicate that women with oral cancer tend to have slightly better survival rate। ओरल कैंसर क्यों बढ़ रहा है? इट इज ऑन द राइज। दिस वाज नोटेड दैट अमंग 14 ऑफ द 43 रजिस्ट्रीज अमंग विमेन एंड इन 4 रजिस्ट्रीज। बिसाइड ओरल कैंसर ओवरटेकिंग लंग कैंसर इज द मोस्ट कॉमन टाइप। तो लंग कैंसर को भी पीछे छोड़ दिया ओरल ने। एंड अमंग मेन इनसिग्निफिकेंट बिकॉज ऑफ द यूज ऑफ टोबैको हैज गॉन डाउन ओवर द ईयर। द प्रपोर्शन ऑफ एडल्ट यूजिंग टोबैको इन इंडिया रिड्यूस्ड from 34.6 to 28.6 between 2 rounds of your global adult tobacco survey। Now, evidences from cancer studies suggest that it often takes at least 20 or more years for a cancer to develop after the first exposure to carcinogenic like tobacco। तो tobacco से कैंसर बनने में 20 साल लग जाते हैं। एंड द लॉन्ग लेटेंसी पीरियड में एक्सप्लेन व्हाई ओरल कैंसर रेट कंटिन्यू टू राइज डिस्पाइट रीसेंट रिडक्शन इन टोबैको यूज। टोबैको यूज तो कम हुआ लेकिन ओरल कैंसर बढ़ गया क्योंकि टाइम लगता है, पता ही नहीं चलता होगा इसके जो यूजर्स हैं उनको। सो हाई अल्कोहल कंजम्पशन इसके अलावा अनदर एस्टैब्लिश्ड रिस्क फैक्टर है फॉर ओरल कैंसर। दूसरा कारण आपका डेफिनेटली अल्कोहल है। And according to Dr. Abhishek Shankar, oncologist from AIIMS Delhi, इन्होंने भी ये बोला कि अल्कोहल कंजम्पशन जो है वो आपकी is the known risk factor for at least 7 types of cancer including oral cancer apart from liver। It also increases the risk of your gastric and your colorectal cancer that are among common cancers in men। Then while both alcohol and tobacco consumption are individually known to increase risk of cancer together, they are known to जो है कंपाउंड। तो इससे जो है इनफैक्ट आपका बढ़ता है रेट। एंड मोर स्क्रीनिंग फॉर वुमेन है while proportion जो है of cancer death among women is lower। The researchers have underlined the scope for awareness, screening and other measures such as vaccination। For instance, breast cancer which makes up 30% of cancer in women can be detected earlier। उसकी स्क्रीनिंग जल्दी हो सकती है। एंड देन इसके अलावा cervical cancer incidences that was below 4 पर आपके 1 lakh in only 2 registries and emphasize the need to strengthen screening। तो इसकी वैक्सीनेशन और स्क्रीनिंग और बेटर करें तो फिर और रेट्स कम होंगे। नॉर्थ ईस्ट में अलर्ट है आपका, नॉर्थ ईस्ट में बहुत ज्यादा हमें दिख रहा है। द हाईएस्ट कैंसर इंसिडेंसेस अक्रॉस 43 रजिस्ट्रीज वाज रिपोर्टेड फ्रॉम एजेबल इन मेल्स और वहीं पे फीमेल में भी है। सो लाइफस्टाइल, एनवायरनमेंट एंड इन्फेक्शियस रिस्क फैक्टर लीड टू हाई बर्डन इन द नॉर्थ ईस्ट। द यूज ऑफ टोबैको अमंग फीमेल और मेल नॉर्थ ईस्ट में दोनों ही करते हैं, ठीक है, ये रीजन है। बिसाइड टोबैको, बीटल नट च्यूइंग, सर्टेन डाइटरी हैबिट्स सच एज कंजम्पशन ऑफ साउंड दैट इज फर्मेंटेड पोर्क फैट लेते हैं वहां पे, स्मोक्ड ड्राइड salted meat, fish, very spicy food, hot beverages, soda as
फूड एडिटिव, तो ये सारे रीजंस है वहां पे कैंसर के ज्यादा होने के. मोreover the prevalence of infections such as your helicobacter pylori, then hepatitis, then salmonella typhi, then human papilloma virus etc. ये भी वहां पे ज्यादा है, which may act as a carcinogenic in several cancers is also very high in this region. So इसके अलावा आपका the use of preservatives and smoking of your meat ये reason है. Increase the exposure of nitrogen compound बढ़ता है, and these are known to increase cancer risk. There is high prevalence of smoking and drinking in these states that increase the risk of several cancers. So इस सारी चीजों को मेंस के लिए भी आप रेफर कर सकते हो. Geographical spread, highest incidence of breast जो है that was in Hyderabad, while that of cervical cancer as well में. Highest occurrence of lung cancer in men श्रीनगर में. Among women in as well है. Lung cancer emerges as the most frequently diagnosed cancer in southern area and metropolitan cities like Visakhapatnam, Bengaluru, Kollam, Thiruvananthapuram, Malabar region, Chennai, Delhi. Highest incidences of oral cancer ज्यादा है Ahmedabad. Among women east खासी हिल में. माउथ कैंसर वाज फाउंड इन मोस्ट कॉमन इन सम ऑफ द वेस्टर्न लाइक अहमदाबाद, अर्बन, भोपाल, नागपुर, वारदा रीजन. सेंट्रल में आपका बर्शी रूरल, मुंबई, औरंगाबाद, देन उस्मानाबाद, देन बीड, पुणे, सिंहभूम. एंड नॉर्दर्न में अगर हम देखें तो आपका वाराणसी, प्रयागराज, श्रीनगर, ये सारे रीजन में पाया गया. एंड अकॉर्डिंग टू द एक्सपर्ट्स द ज्योग्राफिकल स्प्रेड जो है अंडरस्कोर्स द नीड टू हैव नेशनल एज वेल एज स्टेट लेवल प्लान्स जो है हमें इसके लिए बनानी डेफिनेटली चाहिए. सो बहुत ही इंपॉर्टेंट आपके लिए डाटा जो है वो इसमें कवर हो रहा है. इसकी तरफ बढ़ते हैं बेटा. नाउ stating that the right to children to free and compulsory education act 2009 ought to apply to all minority institutions whether aided or unaided. तो ये आपका right to education जो है वो सबके ऊपर applicable है. The Supreme Court on Monday called for a reconsideration of its 2014 Constitutional Bench judgment granting them blanket exemption from the applicability of the law, saying it seems unavoidable. तो अब ये पुरानी आपकी जो है जजमेंट की बात चल रही है 2014, उसको लेके इसको रिकंसिडरेशन करने की बात की गई है, जहां पे कि एग्जेम्प्ट किया जा रहा था प्राइवेट जो है आपके इंस्टीट्यूशंस को. इन द प्रावती एजुकेशनल एंड कल्चरल ट्रस्ट वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस, अ 5 जज सुप्रीम कोर्ट बेंच in 2014 had held that RTE Act insofar as it is made applicable to minority schools covered under Article 30 Clause 1, which deals with the right of religious and linguistic minority to establish and administer education institutions of their choice, वहाँ पे aided or unaided is ultra vires the constitution. because इसके ऊपर applicable आप ना करो, because इनको हमने Article 30 Clause 1 में special space दी हुई है. Now on Monday, 2-judge bench, Justice Dipankar Datta and Manmohan, that considered the 2014 decision in the bench of appeal raising the question of applicability of your teachers eligibility test to minority educational institutions. तो in that sense फिर अब क्या टेट जो टेस्ट है वो होना चाहिए टीचर्स के पास इन माइनॉरिटी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में, इसको लेके क्वेश्चन बना. Now we have serious doubts as to whether Pravati Educational and Cultural Trust जो आपका केस था रूलिंग was justified in granting a blanket exemption to minority institutions. तो कहते हैं हमें तो इस बात को लेके भी अब भी क्वेश्चन मार्क लग रहा है कि क्या हम प्राइवेट इंस्टीट्यूशन को ब्लैंकेट एग्जामिशन दे रहे ऑन द बेसिस ऑफ योर आर्टिकल 30 क्लॉज 1 जो कि आपके रिलीजियस और लिंग्विस्टिक मिनॉरिटी के इंस्टीट्यूशंस पे एप्लीकेबल होता है. तो इस बेसिस पे क्या उनको एग्जम्प्ट कर दे हर तरह के डिफरेंट और लॉज को लेके, जैसे कि राइट टू एजुकेशन की एप्लीकेबिलिटी वहां पे कि उनको देना ही देना है एडमिशन बच्चों को, और इसके साथ ही उनके टीचर्स के ऊपर टेट जो है उसकी क्वालिफिकेशन होनी चाहिए कि नहीं, क्या उसको एग्जम्प्ट कर दें. तो अभी बेंच को लग रहा है कि नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए. The bench directed that its decisions be placed before the CJI for appropriate directions on whether the Pravati ruling should be reconsidered by larger bench. तो अभी CJI को ये आप डेफिनेटली रेफर करो और ये बात देखिए कि क्यों ना हम पुराने वाले केस को भी दोबारा से रिकंसीडर करें जहां पे कि हमने प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस को एग्जेम्प्ट किया था. Now, writing for the bench, Justice Datta said, in our considered opinion, RTE Act ought to apply to all minority institutions. सब पे ही लागू होना चाहिए, क्यों नहीं होना चाहिए? And whether aided or even unaided, the court said that its implementation जो है does not erode
let alone annihilate the minority character protected under Article 30 Clause 1. तो ये आपके minority character को खराब थोड़ी कर रही है RTE, right? So on the contrary, applying the RTE Act aligned with the purposive interpretation of Article 30 Clause 1. In fact, ये Article 31 को better कर रही है, as there is no inherent conflict between Article 21A, that is right to education, and Article 30 Clause 1. Both can and must coexist mutually. क्योंकि Article 21E जो भी हमारा 21A जो कि राइट टू एजुकेशन प्रोवाइड करता है एंड 30 क्लॉज 1 उसमें कोई कॉन्फ्लिक्ट थोड़ी है, तो उस वजह से हमें रिकंसीडर करना चाहिए अपने पुराने केस को. एंड द बेंच सेड दैट सेक्शन 12 क्लॉज 1 सब क्लॉज C of the Act which mandates 25% reservation for children from disadvantaged group and weaker section at the entry level serves the broader purpose of social infusion and universalization of elementary education. तो 25% रिजर्वेशन अगर हम डिसएडवांटेज बच्चों के लिए कर रहे हैं, वीकर सेक्शन के लिए कर रहे हैं, तो ये तो अच्छी बात है, ये तो यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन को बेटर ही करेगी. While it is true that such a provision impact institutional autonomy, हाँ institutional autonomy थोड़ी खतरे में जा सकती है to some extent, लेकिन the correct question however is whether it results in the annihilation of minority character of such institution. लेकिन उससे उसका minority character तो disturb नहीं हो रहा है. This requires a fact specific analysis and not a blanket exemption. तो आंखें बंद करके exemption ना करो, इसके ऊपर और further काम होना चाहिए. The court said that section 12(1)(c) does not alter school demography. अगर हम इसको अप्लाई कर रहे हैं तो स्कूल की डेमोग्राफी में चेंज नहीं आएगा इन अ वे दैट वुड कंप्रोमाइज द माइनॉरिटी आइडेंटिटी ऑफ माइनॉरिटी स्कूल. Minority institutions undisputedly admit students from outside their community. Doing so under a transparent state-guided framework does not affect any right. Moreover, section 12(1)(c) is accompanied by a reimbursement mechanism which ensures financial neutrality. Now, the ruling said that even assuming that a conflict exists between section 12(1)(c) and 31, such a conflict can be reconciled by admitting children from minority community itself. अगर आपको लगता भी है कि minority आपका स्टेटस डिस्टर्ब हो रहा है, तो फिर ये कर लेते हैं कि इसमें जो बच्चे आपने वीकर सेक्शन से लेने हैं वो माइनॉरिटी ग्रुप से ले लो, राइट, प्रोवाइडेड दे फॉल विद इन द डेफिनेशन ऑफ वीकर सेक्शन और डिसएडवांटेज ग्रुप एज स्पेसिफाइड अंडर आर्टिकल योर राइट टू एजुकेशन एक्ट. Now on TET जो है exam, the court held that it is one of the minimum qualification that may be prescribed under section 23 of RT Act. तो ये तो minimum qualification है, definitely ये होनी चाहिए टीचर्स के पास. So very important news, article 21A, article 31 क्लॉज 1 सारे के सारे मिनॉरिटी आर्टिकल्स आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो गए हैं. बेसिक क्वेश्चंस भी आ सकता है और ये अप्लाइड क्वेश्चन भी आपको आ सकता है. न्यूज है अफगानिस्तान को लेके, वहां पे बहुत ही बुरा एक अर्थक्वेक आया. कोई भी नेचुरल कैलेमिटी किसी भी कंट्री में हो आपको पता होना चाहिए. वन ऑफ अफगानिस्तान वर्स्ट अर्थक्वेक किल्ड मोर देन 800 पीपल, इंजर्ड 2800 अथॉरिटीज ने हमें बताया ड्यू टू रीच जो है इनकी रिमोट एरियाज, टू रफ माउंटेन टेरेन एंड इंक्लीमेंट क्लाइमेट. सो द डिजास्टर विल फर्दर स्ट्रेच द रिसोर्सेज ऑफ वॉर टॉर नेशन. तो ऑब्वियसली और दिक्कत बढ़ने वाली है ऐसे नेशन के अंदर. और इसके अंदर जो है आगे फिर spokesman said that the international aid to tackle devastation wrought by quake of magnitude, तो कितना मैग्नीट्यूड है ये आपने ध्यान देना है, that is 6, that struck around midnight local time at the depth of 10 kilometer. ये आपने लर्न करना है. The quake killed 12 जो है people in the कहाँ पे आया, ईस्टर्न प्रोविंस ऑफ कुनार एंड ननगरहर. एंड एडमिनिस्ट्रेशन स्पोक्समैन ने ये हमें बताया एंड स्टूडेंट ऑफ योर अल फलाह यूनिवर्सिटी इन द ईस्टर्न सिटी ऑफ जलालाबाद. तो एरियाज हमेशा आपने लर्न करने होते हैं जहां पे कि ऐसा इंसिडेंट जो है वो आपका अकर हुआ है, राइट. सो द एरिया ऑफ अर्थक्वेक वाज अफेक्टेड बाय हेवी रेन इन लास्ट 24 to 48 आवर्स एज वेल एज सो द रिस्क ऑफ लैंडस्लाइड जो है रॉक्स एंड ऑल वो और ज्यादा वहां पे बढ़ गया है. तो ये आप थोड़ा सा मैप के अंदर भी फोकस कर सकते हो. तो ये आपका काबुल जलालाबाद, ठीक है, जलालाबाद के पास आपका जो है इसका एपिसेंटर है. मैग्नीट्यूड जो है वो आपका मिडनाइट क्वेक हिट, डेप्थ 10 किलोमीटर, इम्पॉसिबल रोड्स रफ टेरेन के अंदर. थर्ड डेडली है 2021 से लेके अब तक. और श्रिंकिंग ऑफ द फंडिंग फॉर अफगानिस्तान लेड टू यूएस एड कट हैज हैम्परिंग द डिजास्टर रिस्पॉन्स. और ऑब्वियसली इनके पास पैसा भी बहुत कम है, इस वजह से और ज्यादा दिक्कत जो है इनको आ रही है. तो ये रीजन आपने खास करके ध्यान देना है, जो कि हमने अभी मैप में कर लिया.
राइट. सो दिस इज ऑल दैट is about this news which is important. आगे बात करते हैं why earthquake occurs and why अफगानिस्तान जो है is so vulnerable. And earthquake जो आपने अभी देखा 6 मैग्नीट्यूड का आपका जो है स्ट्रक हुआ, और इसके अलावा 2023 में कंट्रीज हेरात प्रोविंस एक्सपीरियंस 3 मेजर क्वेक्स and which killed 1300 people. इसके अलावा 2022 के अंदर भी 5.9 मैग्नीट्यूड का अर्थक्वेक आया. Now what causes an earthquake? An earthquake is an intense shaking of the ground caused by movement under the earth's surface. It happens when two blocks of the earth slip past one another, which releases stored elastic strain. तो obviously दोनों आपके जो है प्लेट्स क्लोज आ रही हो या दूर जा रही हो, कन्वर्जेंस है या डाइवर्जेंस है, कुछ भी आपकी मूवमेंट है, जो स्टोर्ड एनर्जी है वो रिलीज हो जाती है, वो हमारे लिए अर्थक्वेक बन जाती है. The Earth's crust is fragmented into tectonic plates whose hedge called plate boundaries constitute faults or zones of fracture between blocks of rock. So these tectonic plates move slowly, sliding past, bumping into one another. So earthquake occurs when a plate has moved far enough and its rough edge stuck on the fault ultimately overcome the friction and slip. तो थोड़े से क्लोज आ जाती हैं आपस में, तो बहुत सारे चांसेस हैं आपके वहां पे क्वेक आने के लिए. द पॉइंट बिटवीन अर्थ सरफेस वेयर एन अर्थक्वेक स्टार्ट्स इज कॉल्ड, उसको हम क्या बोलते हैं, हाइपोसेंटर. और जो लोकेशन डायरेक्टली अबव द सरफेस ऑफ द अर्थ है उसको हम बोलते हैं एपिसेंटर. नाउ व्हाई डज क्वेक डेप्थ मैटर? Shallow quakes of depth up to 70 km is generally more dangerous as they carry more energy when they emerge to the surface. याद रखो, ये क्वेश्चन बनता है आपका. And as compared to quakes that occur deeper underneath. Deeper quakes spread farther as seismic waves move rapidly upward to the surface, but the waves lose energy. ऊपर तक आते आते एनर्जी कम हो जाती है. Apart from the depth, the magnitude of an earthquake determines how destructive it could be. So magnitude is how big the seismic wave are. कितनी ज़्यादा बड़ी seismic wave तब निकली है. And while strength refers to the energy they carry. Very very important. ये आपको डिफरेंस बता रहा है मैग्नीट्यूड और स्ट्रेंथ के अंदर. तो इस वजह से जो है आपकी सिस्मिक वेव जो प्रोड्यूस्ड बाय दीज मैग्नीट्यूड ऑफ द अर्थक्वेक 10 टाइम्स हायर द एम्पलीट्यूड देन द वंस प्रोड्यूस्ड बाय मैग्नीट्यूड 5. एंड द एनर्जी जो है डिफरेंशियल इज इवन हायर 32 टाइम्स फॉर एवरी चेंज ऑफ 1 इन मैग्नीट्यूड. तो ये भी आप कंपैरिजन याद रखो. तो अफगानिस्तान के अंदर क्यों? अफगानिस्तान लाई ऑन अ नंबर ऑफ फॉल्ट लाइन वेयर इंडिया एंड यूरेशियन प्लेट्स मीट. मस्ट रिमेंबर दिस. These plates collide, often leading to significant tectonic activity. Generally converge करती हैं ये. And your seismologist हैं आपके ब्रियान पैप्टे, उन्होंने कहा with India moving towards Eurasia at about 45 mm each year, this collision zone is one of the most seismically active region on the earth, accounting for around 15% of seismic energy जो release होती है around the world each year. This is an area of very high seismic hazard with regular earthquake activity spreading across the complex fault. Hindu Kush region has seen 12 quakes of magnitude greater than 7 since 1900s. Right? So ये सारा डाटा आप अच्छे से लर्न करो. So this is all for today. आज के लिए इतना ही. ये सारी चीजें आपको सॉफ्ट कॉपी में मेरे टेलीग्राम चैनल ग्लोबल इंस्टीट्यूट कॉम्पिटिटिव एग्जाम में मिल जाएंगी. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग. और प्लीज आप करंट अफेयर को अंडर एस्टिमेट बिल्कुल भी मत करो. जनरली आपके जो पेपर होते हैं वो करंट अफेयर ओरिएंटेड ही रहते हैं. इसके अलावा मैंने आपको पहले ही बताया मेरी एक दूसरी वीडियो लेक्चर सीरीज स्टार्ट हो गई है जो कि है आपका रिवीजन बैच. उसकी एक वीडियो ऑलरेडी पोस्ट हो चुकी है. बाकी रेगुलर इंटरवल मैं करती रहूंगी, तो मेरे साथ साथ आप रिवाइज भी करते रहो. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग.